आ रही है आवाज। Should I start? Yes, sir. You can. Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Mohsin Raza Bukhari, Assistant Professor of Psychology. And today we are here to talk about one of the most important topics on life skills. And before I start my topic, I would extend my best wishes to all of the participants who are attending this session for the promotion from 18th grade to 19th grade. And I have this privilege to share the knowledge on this particular topic with you people. So I hope that what I have learned, I'm going to share and exchange the ideas with you people, and we are going to have a good time. So I hope that all of you are having a great time, and we are going to have some discussion and exchange of ideas on this topic. First of all, I would like to ask you people, when you hear the word personality, what actually comes to your mind when you hear this word personality? Any one of you please would like to share your idea? What is personality? Please. कोई बात करना Yes, चाह sir. रहा है? कोई बात करना चाह रहा है? मैंने एक सवाल पूछा है. सर हैंड रेस हुए हैं, मैंने माइक अलाउ कर देता हूँ जिन्होंने हैंड रेस किए हैं. जी जी, आइडिया कर लेना दिए चाह सर. रहा. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. Sir, I'm Afsha Irfan from Fine Arts Department. I want to share my thoughts about it, that I think personality is a combination of physical and internal attributes. Okay. And what else that comes to your mind? जी, कोई और बात करना चाहेगा? I would like to agree with Ms. Afsha that it is a combination of physical traits and internal attributes. And we may also attach at times social factors with it, our profession and our gender and age group. So these things can also be connected with personality. Is the concept of personality. Good. Thank you very much for sharing your ideas with me on the topic of personality. So basically, most of the times we get confused by the word personality, because whenever we are talking about personality, normally the thing that comes to our mind is about the external or external looks, or your appearances, or your physical structure, or your facial expressions. All these things actually come to our mind when we talk about personality. This is normally what we perceive. But here I would certainly thank to my respectable colleagues and participants who just have elaborated and given the definition or the idea of personality, that it is not limited to our outlooks only. Basically, personality is more than just the appearance. So here, the internal attributes. Now we are going to elaborate this concept, like what is actually
meant by internal attributes and the physical features. So here we are going to define personality scientifically, and then we are going to elaborate it, and this concept, how did this concept emerge over the years, and then we just reach to this point that personality is something very, very important for all of us. So here we go, and here is the definition of personality. Personality refers to the unique set of characteristics, traits, behaviors, and patterns of thinking that define an individual's way of being in the world. आप सबके लिए पर्सनैलिटी जब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद होती है। तो पर्सनैलिटी बुनियादी तौर पर एक सेट है, एक यूनिक सेट है किन चीज़ का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, आपकी ट्रेट्स का, आपके बिहेवियर्स का, आपके जो पैटर्न्स हैं थिंकिंग के उसका। जब ये आपकी ट्रेट्स, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी थॉट्स, आपके थिंकिंग पैटर्न, जब ये सब मिलते हैं तो ये सब मिलकर आपको बनाते हैं जो आज आप हैं। अगर बात आपको ये समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारे लिए अगली स्टेजेस जो है वो आसान हो जाएंगी। पर्सनैलिटी जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये एक हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मटेरियल फॉर्म के अंदर हो। बेसिकली ये ट्रेट्स का नाम है, ये आपके थिंकिंग पैटर्न का नाम है, ये आपके बिहेवियर का नाम है। तो ये जब सब मिलते हैं, यानी आपके थॉट्स, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम देखेंगे कि ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स और थिंकिंग पैटर्न को अगर हम जाकर मज़ीद डिफाइन करेंगे इससे क्या मुराद है, लेकिन जब हम इनको एज अ कॉम्बिनेशन इसका हम बनाते हैं, इसका कॉम्बिनेशन की सूरत में हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी गुड है या बैड है। गुड और बैड मैंने क्यों कहा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो ये है कि हम देखना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी बुनियादी तौर पर जिसको हम कहते हैं कि गुड पर्सनैलिटी, तो गुड पर्सनैलिटी से क्या मुराद है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है पर्सनैलिटी का कि पर्सनैलिटी बेसिकली क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और ट्रेट्स, बिहेवियर्स और थिंकिंग पैटर्न के कॉम्बिनेशन से मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आप जो भी आज इस वक्त हैं वो आप बेसिकली एक मजमुआ हैं अपनी थॉट्स का, अपनी ट्रेट्स का, अपने बिहेवियर्स का। तो अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब हम बात करते हैं गुड पर्सनैलिटी की, तो गुड पर्सनैलिटी से आप क्या मुराद लेते हैं। जी प्लीज़ अगेन अली ज़रा अलाउ कीजिएगा, आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो प्लीज़ कोई डिफाइन करना चाहे गुड पर्सनैलिटी से क्या मुराद है। जी सर, अलाउ कर दिए। जी थैंक यू। Good personality would be, the idea about a good personality would be subjective. We would have our own personal point of view about what is good and what is not good. So it would depend on the person. The beauty lies in the eyes of the beholder. So what we actually value in life, do we value wealth? Do we value beauty? Do we value knowledge? Or we value power? So whatever is valuable to us, our values would determine what is our concept of a good personality. Good, thank you very much. Very good insight, and it would be interesting. It would be an interesting session with you people. And anyone else, please. Good personality से, अच्छी शख्सियत से क्या मुराद है, अब डिफाइन करना चाहे कोई। Afshan Irfan again. I want to add on a few things. I think that a good personality carries the traits for acceptable, which are acceptable for all. Like nobody likes dishonesty, nobody likes corruption, or these types of traits which are quite think of a taboo in our society are not acceptable by most of the people. I think these traits are also come into the category of bad personality. Okay, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने मज़ीद मेरी हेल्प की, इसके अंदर आइडिया को शेयर किया। और आज हम देखेंगे कि सबसे पहले
जी जी, वालेकुम सलाम, प्लीज मैम। I'm Dr. Shagufta from Color Saida. As I perceive, good personality mean behaving in a good manner. As the lady before she explains कि कोई भी चीज जो है जो गुड है उसको हर सोसाइटी में गुड ही परसीव किया जाता है. लाइक ऑनेस्टी है, तो ये जो बिहेवियर्स पर्सनालिटी शो करिए, आई फील इट मीन्स अ गुड पर्सनालिटी. ओके ओके, थैंक सर यू। मैं डिस्कस करना चाहूंगी. जी जी सर डॉक्टर सायरा बानो बात कर रही हूँ रहीमिया खान से. जी सर डॉक्टर। जो इंडिविजुअल का माइंड और बिहेवियर उसको इंडिविजुअली भी बेनिफिट करे और सोशली भी जो है ना वो फेवरेबल उसकी जो मैनिफेस्टेशन हो बिहेवियर की भी माइंड की भी, यानी कि और इससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उसके माइंड से रिलेटेड उसकी बिहेवियर से रिलेटेड वो सारे इंडिविजुअली एंड सोशली जो है वो बेनिफिट हो उसमें, इंडिविजुअल के लिए भी सोशल भी. इंडिविजुअल और सोशल, यानी आप पर्सनल लेवल पर और सोशल लेवल पर आप कह रहे हैं पर्सनल लेवल पे भी वो बेनिफिटेड हो और सोसाइटी के लिहाज से भी वो एक्सेप्टेबल हो और बेनिफिटेड हो. सेट स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स है जी. थैंक यू डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट. And actually all of you have said the right things in the right way. So यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल हमारी अप्रोच है और सब्जेक्टिव अप्रोच है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट इसमें करना चाहूँगा कि सब्जेक्टिव अप्रोच तब तक होती है जब तक हम इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर लेते किसी टॉपिक के ऊपर, जब तक हम ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अपनी रिसर्चेस के थ्रू नहीं देख लेते. तो हम बात करने जा रहे हैं गुड पर्सनैलिटी. जब गुड पर्सनैलिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी, सब्जेक्टिव अप्रोच हम इसको नहीं कह सकते. बिकॉज देयर हैव बीन सो मेनी रिसर्चेस अबाउट गुड एंड बैड पर्सनैलिटी एंड गुड एंड बैड लीडरशिप. दैट्स व्हाई we are going to define good personality on the basis of researches. That's why here actually we go about good personality, and we will see what is the definition of good personality. Good personality, the personality is the indicative pattern of sensible feeling and bearing that make a person unique. When we say that someone has a good personality, we express that they are agreeable, interesting and satisfying to be with. Everyone desires to be attractive to others. So here you may see, अगर मैं इसको मुख्तसर कर दूं, बिल्कुल आसान कर दूं सबके लिए ताकि इसको कम्प्रीहेंशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम सिंपल सा अगर इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी शख्सियत के जो एग्रीएबल हो, जो इंटरेस्टिंग हो एंड सेटिस्फाइंग टू बी विद, यानी जिसके साथ हम सेटिस्फाइड फील कर रहे हों, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि सच काइंड ऑफ पीपल दे आर हैविंग गुड पर्सनैलिटी. ये इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन है. But anyone? So here I want to say a few things about a good personality. सबसे पहले कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जब हम कहते हैं ना गुड पर्सनैलिटी, तो उससे क्या मुराद है. आप लोगों ने ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया मुख्तसर अंदाज में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इंटरप्शन हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिसिटी. जब हम गुड पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अ पर्सन हु इज जेन्युइन, हु इज ट्रू टू वन सेल्फ, ऐसा शख्स के जो ऑनेस्ट है. कुछ स्टैंडर्ड्स है ना, तो सबसे पहले क्या है, जेन्युइन हो, ऑनेस्ट हो और अपने एक्शंस में, अपनी फीलिंग्स में, अपनी थॉट्स में, इस हवाले से वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो. ऐसे शख्स को हम कहेंगे कि ऐसा शख्स जो है वो गुड पर्सनैलिटी का मालिक है. अली ये माइक जरा बढ़ा दीजिएगा प्लीज, ये डिस्ट्रप्शन हो रही है. ये माइक इस पार्टिसिपेंट का प्लीज. जी ओके मैम. जी ओके सर, आप करें. जी जी जी, जब मैं कहूँ तब आपने ऑन करना है. थैंक यू. ओके. तो अब हम देख लेते हैं कि गुड पर्सनैलिटी जो है, आप लोगों ने ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर दिया, तो इसको थोड़ा सा आप सब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए कॉन्सेप्ट जो है गुड पर्सनैलिटी का भी वेग होगा, जिनके लिए अभी मुबहम कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जेन्युइन एंड ट्रू टू वन सेल्फ. ऐसे लोग जो हैं, ऑथेंटिसिटी होती है इनके अंदर, ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं अपनी थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में, अपने एक्शंस के अंदर.
नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एम्पथी, ऐसे लोगों के अंदर एम्पथी पाई जाती है। एम्पथी का मतलब बेसिकली ये होता है कि टू पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, मतलब कि अपने आप को किसी दूसरे की जगह पे रख कर सोचना, ये ख्याल करना कि अगर कोई मुश्किल में है तो वो फर्द इसकी जगह अगर मैं होता तो फिर मैं क्या फील कर रहा होता, मैं क्या सोच रहा होता। तो आपके अंदर ये सलाहियत होना कि दूसरे की जगह पर अपने आप को रख कर सोचना। अच्छी पर्सनैलिटी से मुराद है कि जो रिस्पेक्टफुलनेस, यानी जिसके अंदर कर्टसी पाई जाए, फेयरनेस पाई जाए, जो दूसरों की ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट दें, दूसरों की बाउंड्रीज को का भी ख्याल रखें, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो गुड पर्सनैलिटी रखते हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि जब मैं ये सारी बातें अभी कर रहा हूँ तो मैं इसका जो पर्सपेक्टिव है वो स्टूडेंट और टीचर का पर्सपेक्टिव जहन में रख के बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर हम जब बात करते हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जनरेशन, ऐसी जनरेशन लेकर आने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो, जो हमारी कौम के लिए जो है, जो हमारे कौम के जो ममार होंगे, जो हमारी जनरेशन है हमारी कौम को मुल्क को आगे लेकर जाएगी, तरक्की के मनाज़िल तय करवाएगी। मैं उस वाले से बात कर रहा हूँ कि हमने अच्छी पर्सनैलिटी वाले जो हैं स्टूडेंट्स वो पैदा करने हैं। तो लिहाजा इसलिए आपको मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि अच्छी पर्सनैलिटी से क्या मुराद है, वो सेट स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से हैं जिसकी बेस के ऊपर हम किसी को अच्छी पर्सनैलिटी की कैटेगरी में लेकर आएंगे, और जो इसके ब्रक्स, ये इस इन क्वालिटीज़ के ब्रक्स वो होगा, वो बैड पर्सनैलिटी होगी। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, ऑथेंटिसिटी की बात की, यानी ट्रूनेस, एक ऑनेस्टी की बात की, सिंसियरिटी की बात की, इसी तरह मैंने एम्पथी की बात की। अभी मैं बात कर रहा हूँ रिस्पेक्टफुलनेस, ऐसा शख्स जो दूसरों को कर्टसी शो करे, फेयरनेस शो करे, जो दूसरे की बाउंड्रीज़ का जो है वो ख्याल रख रहा हो, ऐसा फ़र्द के जो ऑप्टिमिस्टिक हो, वो अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है। यानी जिसका फोकस जो है वो प्रॉब्लम पर ना हो, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर हो। सो सच काइंड ऑफ पीपल दे विल बी कॉल्ड that they are having a good personality and they are good persons. So ऑप्टिमिज्म ऐसे लोगों में होना चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए। यानी जैसे भी हालात हों, मुश्किल हालात हों, एडवर्सिटी हो, सेटबैक्स लाइफ के अंदर आ रहे हों, तो ये लोग क्या करें, इन तमाम चैलेंजेस से, इन तमाम कठिन हालात से गुजर कर भी वापस अपने टारगेट पर रहें, अपने जर्नी को, अपने रास्ते को कभी ना छोड़ें जब तक वो अपने असल टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग जो हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं, जिनके अंदर दूसरों के व्यूज़ को, यानी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझने की कोशिश कर रहे होते, हम दूसरे सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहे होते। तो ऐसी सूरत में वो शख्स कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ जो हैं उनको सुनने की हिम्मत रख रहा हो, हौसला रख रहा हो, दूसरों के व्यूज़ जो है, डिफरेंस ऑफ व्यूज़ जो है उसकी जो रिस्पेक्ट कर रहा हो, उसको ऑनर दे रहा हो, ओपन माइंडेड हो, such kind of people, they will be falling under the category of good persons. So in the same manner, the people who are confident, the people who show humility, I mean who are down to earth, who are contributing to the society, even they are big people, they are big personalities, but at the same time they are down to earth because they don't just boasting of their stature, their position. ऐसे लोग जो है डाउन टू अर्थ होते हैं और वो काम से काम रखते हैं, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चंद एक हैं, इसके अलावा भी हैं ट्रेड्स, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जिसके अंदर मैं सब चीज़ें कवर कर सकूँ, बिकॉज वी स्टिल हैव टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स। सो द पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट गुड पर्सनैलिटी एंड व्हेन वी से कि गुड और बैड पर्सनैलिटी का फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। ये जो मैंने अभी चंद पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं कि जो हमें अपनी ज़ात, क्योंकि यहाँ पे बात हम कर रहे हैं पर्सनैलिटी की, और आगे हम बात जाकर करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट की। ये पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें। तो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो ट्रेड्स हमें चाहिए, बिकॉज हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, ये कॉम्बिनेशन है ट्रेड्स का, करैक्टरिस्टिक्स का, थिंकिंग पैटर्न का, आपके बिहेवियर का, इसका कॉम्बिनेशन है। तो हमने अपनी ट्रेड्स बेहतर कर ली तो इसका मतलब हमारी पर्सनैलिटी बेहतर हो गई। तो सबसे पहले जब हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये ख्याल करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे करैक्टर के मालिक हों, वो अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हों, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी ट्रेड्स हैं, वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हमें इम्पार्ट करनी है टू अवर
students, because we already have developed good personalities. We are honest, we are sincere, and we are empathetic, we are having optimism in our life, we are open-minded. So the qualities that we have, that we possess at this stage, we must pass on these qualities. We must impart this information, this knowledge to our students, so that they can develop good personalities, and we can appreciate them, and they can contribute to the society. So next step हमारा जो है, इससे अगला जो point है good personality का, वो ये है कि personality development. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? सॉरी, मैंने क्लिक कर दिया थोड़ा सा पहले। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी नज़र में क्या है? अली, ज़रा मौका दीजिएगा पार्टिसिपेंट्स को ज़रा अपने व्यूज़ शेयर करने का। हम जानना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक हमने डिफ़ाइन किया पर्सनैलिटी क्या है, गुड पर्सनैलिटी क्या है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, हमारा मेन जो फोकस है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो आपके जहनों में क्या आता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, जबकि हम इस वक्त यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेसर हैं? तो काइंडली ज़रा अलाउ कीजिएगा। तो मैं जानना चाहूँगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से क्या मुराद है। जी प्लीज़। जी सर, माइक चलाओ। जी प्लीज़, थैंक यू। जी सर, I want to add on upon this topic that I think some traits should be built in with, or we should try to build in with our students as well, like creativity, taking good initiative, being positive, being adaptable for the quest of learning, or trying to we should be motivated and try to inspire our students as well. These are kind of few attributes that must be addressed, I guess. That's good. Thank you very much, ma'am, for a very good. जी जी, वालेकुम सलाम। प्लीज। हमने ये चीज डिस्कस की कि जो गुड पर्सनालिटी होती है, उसमें जो लाइक गुड पर्सनालिटी के ट्रेट्स में हमने ये बात की कि वो सोसाइटी में पॉजिटिव या गुड जो है वो इम्पार्ट कर सके। तो दैट्स व्हाई फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी देयर इज नीड ऑफ गुड पर्सनालिटीज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर इस तरह के पॉजिटिव ट्रेट डालें ताकि वो सोसाइटी को डेवलप करने का पार्ट बन सके। एग्जैक्टली। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बुनियादी जो हमारा नुक्ता है वो है पर्सनैलिटी डेवलप करने का, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है गुड पर्सनैलिटी, और अभी हम कह रहे हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बिल्कुल आप सही फरमा रही थी। तो अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे साइंटिफिक वे में कि जो बिकॉज जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें एक समटाइम्स एक वेग आइडिया होता है, हमें क्लैरिटी नहीं होती, तो हम साथ साथ यहाँ पे एक साइंटिफिक अप्रोच ज़हन में रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर प्लीज़ ये अली ज़रा माइक ऑफ कर दीजिएगा, ये डिस्टॉर्शन आना शुरू हो गई। सर अभी हमारा टाइम रहता है। जी जी, ये माइक ज़रा ऑफ कीजिएगा, डिस्टॉर्शन हो रही है प्लीज़, थैंक यू। तो personality development is basically about building your capacities. Whenever we talk about personality development, the first thing that should come to your mind, it should be like building your capacity, nurturing your talent, enhancing new skill sets, working on your weaknesses and transforming them into strengths. So पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर हम बुनियादी तौर पर बात ये कर रहे हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तो और पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट को हम जब जोड़कर पेश करते हैं तो उससे मुराद हमारी ये होती है कि कैपेसिटी के अंदर इजाफा करना, आपका टैलेंट के अंदर जो है उसके अंदर इजाफा करना, आपकी जो स्किल्स हैं उसमें इजाफा करना, और जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ्स के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको पॉजिटिव बना सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को हम कैसे बेहतर कर उसके अंदर काम कर उसको बेहतर कर सकते हैं। तो अब आज का जो हमारा टास्क है वो बुनियादी तौर पर यही टास्क है कि हम जस्ट इसको एक्सप्लोर करेंगे। आई विल सर्टनली लाइक टू शेयर माई नॉलेज with you people so that we can have some idea कि हम फ्यूचर में जैसे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हमें बात करना पड़ती है तो हमें हम कैसे करेंगे, किन एरियाज़ के ऊपर काम करेंगे। बाज़ का आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास होते हैं
कि जिनको हम कोई असाइनमेंट देते हैं क्लास के अंदर बैठकर, और वो असाइनमेंट दूसरे बच्चों की निस्बत जो है वो जल्दी कर लेता है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो बाकी एवरेज स्टूडेंट्स की निस्बत जो असाइनमेंट को करते हुए, काम को कंप्लीट करते हुए थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है ये बुनियादी तौर पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, कुछ एवरेज के लेवल पे होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो जो बिलो एवरेज होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि आखिर उनके किस एरिया पे हमें काम करना पड़ेगा। क्या उसकी कोई मेमोरी के कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या उसके कोई कॉम्प्रीहेंशन के इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या लैक ऑफ इंटरेस्ट है, क्या उसको कोई स्ट्रेस है, या कोई अदर देन दीज प्रॉब्लम्स वो कन्फ्रंट कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें एड्रेस करना होता है, क्योंकि बच्चों को हम जब भी कोई अच्छी बात हम समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का जो कैलिबर है, उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। तो उससे पहले जब ये सारी हम बातें कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यानी जब बच्चे की हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे तो उससे पहले हमारे में क्या कैपेसिटी है कि हम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। हाँ, क्या हमारे में वो टैलेंट है कि जिसके ज़रिए हम ये असेस कर सकें कि हमारे पास जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। So that's why first of all we have to work on ourselves. First of all we have to develop our capacities. I'm not saying that you people don't have that capacity. What I'm trying to say that we already have the capacity to assess the problems, the issues of the students, but sometimes we find it difficult for ourselves to assess the problem of the students in a proper way. That's why हमें sometimes खुद को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमें खुद अपनी स्किल्स जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत महसूस हो रही होती है। तो आज का पर्पस भी यही है कि हम देखें कि वो कौन कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं कि जिसके ज़रिए जिसको हम अपने अंदर डेवलप करें, अपनी कैपेसिटीज जिससे हमारी बढ़े, हमारा टैलेंट जो है उसके अंदर ज़रा निखार आ जाए, बेहतरी आ जाए मज़ीद, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम सीखते रहते हैं। एवरी पासिंग मोमेंट एक्चुअली इज़ टीचिंग यू अ न्यू लेसन। So that's why we are here to find out, to dig out, is there something else that we don't know about. So आज हम उसके हवाले से देख रहे हैं। तो अभी पॉइंट मेरा ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो आपके टैलेंट, आपके स्किल्स सेट और आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को इनको एनहांस करने का जो है, स्ट्रेंथ्स को हमने मजबूत करना है और वीकनेसेस के ऊपर हमें काम करना है। तो इस वाले से हम इसको यानी इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी अली फिर आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, आपने दोबारा जो है वो माइक खोलना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ करना चाह रहा हूँ कि जब हम ऑलरेडी 15-20 साल तक सर्व कर चुके हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और हम 18 से 19 के लिए जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो एट दिस स्टेज आप क्या समझते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की? वाई शुड वी बी गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स? क्या ज़रूरत महसूस हो रही है? अली ज़रा प्लीज़ ज़रा ये मैं लेना चाहूँगा, व्यूज़ लेना चाहूँगा, तो प्लीज़ ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। जब हम ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, जब हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, जब हम ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो अभी क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है इन सारी ट्रेनिंग की? प्लीज़ कोई शेयर करना चाहे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, अफशान खान। जी, मैं ऐड करना चाहूंगी कि अभी पिछले भी दिनों में हमें भी एक और लेक्चर दिया गया, उसमें भी सर ने यही कहा कि द हायर पोस्ट रिक्वायर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मोस्ट ऑफ द स्टाफ वुड बी appointed as principals और DDOs और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे उनको डायरेक्ट किया जाएगा। क्या पता DPI में या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोस्ट होती हैं, उन पे भी उनको किया जा सकता है। तो जितनी हायर आपकी पोस्ट होगी उतनी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एंड टू पॉलिश दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करने के लिए हमें ये जरूरत है कि हम इन स्किल्स को पॉलिश करें मजीद। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग टीचर्स हैं और टीचर्स की डीलिंग ह्यूमन बींग्स के साथ होती है, जैसे ये प्रोफेटिक प्रोफेशन है जैसा मैं समझती हूँ, तो हम ना सिर्फ खुद को ग्रूम करते हैं बल्कि हमारी डीलिंग इंसान के साथ होती है, उनको हम ट्रेन कर रहे होते हैं। तो
दूसरों को सिखाने के लिए वो सारी चीजें आपके अपने अंदर होनी चाहिए, तभी आप दूसरे को इफेक्टिवली बता सकते हो कि काम आप ऐसे करें, या आपकी पर्सनालिटी इस तरह से गुड हो, अपनी अच्छी होगी तो हम दूसरों को भी लाइक ट्रेन कर पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। I want to say add something that there must be something that was the AI skill as well as computer or many things like Excel and the other things. So how can we achieve them that skills? अगर हम स्किल ये सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे सिखाएंगे? तो जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जो है स्किल्स हमें सीखनी पड़ेंगी। और बल्कि आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा एडवांस हैं कि वो जो है हमसे ज्यादा उनको नॉलेज है इस बारे में। तो अगर हम नहीं सीखेंगे तो आगे हमसे कैसे सिखाएंगे? तो नर्चरिंग के पर्सनालिटी नर्चर करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे पुराने लोग थे मल्टीमीडिया नहीं यूज करते थे, हमें आप ये सारी चीजें, ये सारी एड्स एंड एविएट्स यूज करनी पड़ती हैं हमें, और जब तक हम नहीं करेंगे हमारे स्टूडेंट्स नहीं सीखेंगे। Excellent, excellent. So we have a clear, yes, thank you very much, all of you. Thank you very much. Very good insight. I'm really very happy to know that we all are here to learn something, because this was very important. Sometimes हमें ख्याल आ रहा होता है कि शायद इन ट्रेनिंग्स का, इन सेशंस का कोई उस तरह कोई यूटिलिटी नहीं है, इसका आउटकम क्या होगा। बट आई एम हैप्पी कि ऑल ऑफ यू हैव दिस क्लैरिटी दैट such kind of seminars or trainings there must be there, because they are really very helpful. पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है, हमारी सोशल ग्रोथ के लिए भी है, हमारे करियर जो है ग्रोथ उसके लिए भी है। तो आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, और हम अब देखेंगे कि इसकी जैसे अभी बात की कि इसके सिग्निफिकेंस के हवाले से, तो जब भी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसके क्या फ्रूट्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें हम उससे गेन कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है ये मैंने, इसके अलावा भी हो सकती हैं, अभी मैंने सिग्निफिकेंस के हवाले से बात की है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। तो ये तो चंद एक मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हुए हैं, जैसे कॉन्फिडेंस है, क्रेडिबिलिटी है, इंटरेक्शन है, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एट्सट्रा। मतलब ये है यहाँ पे कि हम लोग जो कॉन्फिडेंस सबसे पहले हम ये गेन करते हैं जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि आज जो है ना वो AI की एज है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हर चीज़ जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे है, और विद इन सेकेंड्स आप जो हर चीज़ जो है वो गेन कर सकते हैं, डिग आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बड़ी तेज़ी से लर्न कर रहे हैं, टीचर से ज़्यादा जो है वो लर्न कर रहे होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है। तो हमें उस पेस को मैच करने के लिए लाजमी है कि अपने आप को भी डेवलप करें। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ख़ासकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो आपकी हो सकती है, लेसन प्लानिंग है आपकी, वो एक उसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। आपकी क्लास मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। क्योंकि जैसे हमने कहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉडर एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो हैं उनको भी शार्पन किया जा सकता है। दैट्स वाई when we learn something new and when we talk about personality development, the first thing that we get, this is the confidence. Because if we are not feeling confident while using various gadgets, so then how is it possible for us to talk confidently with the students? अब जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जब आपको जो वेरियस लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन की फील्ड में, उनका पता होता है, तो आप क्या करते हैं, अपने आप को इक्विप कर रहे होते हैं। किसके साथ? नई डिमेंशंस के साथ, नई नॉलेज, नए हॉराइजन, नए जो ट्रेंड्स हैं एजुकेशन की फील्ड के अंदर। और अभी जब आप अपने आप को इक्विप कर लेंगे, you will be feeling confident. और जब आप खुद confident feel कर रहे होंगे, when you are going to deliver lecture to your students, obviously this confidence will be automatically be passed on to those students who are sitting in front of us, because वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको रोल मॉडल के तौर पर लेते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हमें ऑल द टाइम जो है वो काम करते रहना चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी एक है, जिसमें हमें दो तरह की स्किल्स हैं ना, एक सॉफ्ट स्किल्स हैं और उसके साथ साथ हार्ड स्किल्स हैं। तो हार्ड स्किल्स के अंदर आपको पता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना हमें आना चाहिए, मोबाइल फ़ोन जो है आपको यूज़ करना जो है वो उनका पता होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपको पता है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, स्पेशली इस एरा के अंदर के जहाँ पे हर चीज़ जो है रोज़ बड़ी तेज़ी से
चेंजेस आ रही होती हैं और हम उसके साथ इतनी जो पेस है चेंजेस की उसके साथ हम कोप नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पे आकर फिर हम थोड़ा सा शेकी फील कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें उस कॉन्फिडेंस को बहाल यानी रखने के लिए लर्न करना पड़ता है। तो पहली चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या है, वो है कॉन्फिडेंस। दिस कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर इफ़ यू जस्ट वांट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो आप देखिएगा कि ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। आपको फील नहीं आनी चाहिए कि बच्चे जो हैं हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बच्चों के पास वो जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं मुख्तलिफ गैजेट्स को यूज़ करने की, और हम पीछे रह गए हैं। तो इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको हेल्प करती है कॉन्फिडेंस देने में। सेकेंड चीज़ है आपकी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब आप डेवलप करेंगे अपने आप को, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने के साथ साथ आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो जाएगा। आपकी जो स्किल्स हैं जिसके अंदर आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, उसमें अगर आप सही बात कर रहे होंगे, आप ऑथेंटिक, क्योंकि आज आपने इधर से बात की, अगले ही सेकंड के अंदर ऑनलाइन हर बच्चे ने वो बात चेक कर ली और उनको पता भी चल गया कि जो हैं टीचर जो हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो उस वक्त यहाँ पे फिर एक इशू आ जाता है हमारे पास, अगर हम प्रॉपर सही तरीके से यानी चीज़ों को तैयार नहीं कर रहे होते, अपने आप को भी प्रॉपर नहीं किया होता, तो हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लग जाता है। तो इसलिए अब नॉर्मली तो ये कहा जाता है ना कि यू डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, बट पीपल डू टेंड to judge people by their clothing and how it is worn। आमतौर पर तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि एक जो है बुक है उसको उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने किस अंदाज में क्या पहना हुआ है ये मैटर करता है। इंसान जो है वो आपकी जो लुक्स हैं उसको कंसीडर करते हैं। और इसी तरह से एक और बात कि जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई चीज़ एक्सपेंसिव आपने पहनी, ये इम्पोर्टेंट है कि आपने किस अंदाज में पहनी। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो तो आप प्रॉपर अटायर के अंदर जो है वो मौजूद हों। इसी तरह इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन इज अली डिस्टॉर्शन आ रही है, ज़रा माइक ऑफ कीजिएगा, डिस्टॉर्शन आ रही है, माइक ऑफ कीजिएगा, थैंक यू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है एक तीसरी जो चीज़ है वो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं कि आप क्या करें कि आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे दूसरों के साथ, लोगों के साथ, मसलन आपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करनी होती है, आपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करनी होती है, अपने कोलीग्स के साथ आपने डिस्कशन करनी होती है, अपने हाई अप्स के साथ आपने डिस्कशन करनी होती हैं। तो जैसे जैसे आप सब लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आप ज़्यादा लर्न करेंगे। तो पर्सनैलिटी को जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम ओपननेस की बात करते हैं। हम कहते हैं कि यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद वेरियस पीपल, they are belonging to different areas, they are coming from different backgrounds, और different जो है वो उसका religious concept हो, चाहे political उसके different views हों, चाहे वो किसी geography से ऐसे ताल्लुक़ रख रहा हो जिससे आप इतने खुश नहीं हैं, whatever the case is, but you must have to interact with such kind of people so that this will certainly be helping you to make comfortable to you in the future while you are talking to डिफरेंट पीपल। क्योंकि जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा कंफर्ट लेवल जो है लोगों के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, हम लर्न करते हैं दूसरे के एक्सपीरियंसेस से। तो इस वजह से एक तो फ़ायदा ये होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर के इंटरेक्शन के ऊपर बहुत यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे एक और चीज़ जहाँ पे हम जोर देते हैं वो है लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। मतलब इसका ये है कि आप विनिंग जो माइंडसेट लेकर अगर आप आए हैं, अगर आपकी विनिंग पर्सनैलिटी है, लाइक अगर आप क्लास में खड़े हुए हैं और आपका बॉडी पोस्चर जो है वो डोमिनेटिंग है, वो एक विनिंग माइंडसेट के साथ आप खड़े हुए हैं, आप एक प्लेजेंट जेस्चर के साथ खड़े हुए हैं, जिस भी आप जेस्चर आप दे रहे हैं बच्चों को, वो माइंडसेट, वो जेस्चर वो बच्चों तक पहुंचेगा। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है?
ताकि आप लीड कर सकें, आप मोटिवेट कर सकें। लीड और मोटिवेट कब कर सकेंगे? आप तब कर सकेंगे कि आपके अंदर ऐसी ट्रेट्स पैदा हों, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हों, आपका बिहेवियर ऐसा हो, आपकी थिंकिंग जो पैटर्न है वो ऐसे हों कि सामने वाले जो से कन्विंस्ड हो रहे हों। तो जब ऐसी ट्रेड्स आप पैदा कर लेंगे, जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ वो नज़र आएंगी, जो बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को नज़र आ रहा होगा, लग रहा होगा कि दे आर मिसिंग ऑन इट, वो सर्टनली आपके पास आएंगे और आपसे वो गाइडेंस लेंगे, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल, बट एट द सेम टाइम यू आर अ लीडर फॉर दैम, एंड एट द सेम टाइम यू आर अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर दैम। तो इसलिए पर्सनैलिटी को डेवलप क्यों करना चाहिए हमें, वो क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके सिग्निफिकेंस है? कॉन्फिडेंस के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, इंटरेक्शन के लिए, लीड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। अब एक 5वें नंबर पे रखा है मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स को। नॉर्मली तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर या लाइफ स्किल्स के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है पूरी दुनिया के अंदर, इसको बड़ी ज़्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी सारी की सारी जॉब, यानी एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, हमारी सारी जॉब जो डिपेंड कर रही होती है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और हमने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लिमिटेड हमारी सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे नहीं है, उसके अंदर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत मैटर करती है। और यहाँ तक बल्कि कहा जाता है कि इन सर्टन सिचुएशंस आपकी जो टोन है वॉइस की, उसका 38% इफेक्ट होता है। लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम शेयरिंग आइडियाज विद यू पीपल, तो अभी जो होगी टोन ऑफ वॉइस होगी, इसका इम्पैक्ट जो है वो 38% जा रहा होगा, और 55% जो होगा वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट होगा, और जो वर्ड्स होंगे वो जस्ट 7% होंगे। तो यानी 7% आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, और इसके अलावा 93% जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी और वर्बल जो वॉइस जो होगी आपकी, उसका जो टोन का इफेक्ट होगा। तो अब ये ज़रा करें कि वर्बल कम्युनिकेशन कितना इफेक्ट करती है, और 93% जिसकी हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं वो कितना इफेक्ट करती है। लेकिन ये सर्टन सिचुएशन के अंदर होता है, ये सारी सिचुएशन के अंदर नहीं हो रहा होता, क्योंकि जब हम जैसे राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, आप शायद मेरे बॉडी जेस्चर्स को ना देख सकें, मेरी मूवमेंट्स को ना देख सकें, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग जो हैं वो लर्न कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो आइडियाज़ जो हम शेयर कर रहे होते हैं उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को आसान करके पेश किया जाना चाहिए। तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट डजंट मीन दैट कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग। व्हाट आई मीन टू से, द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ आई थिंक ऑफ is on the top, because the importance of body language is like when we say कुछ हम बात कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, तो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि हम टीच कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, तो समटाइम्स हम बच्चों के साथ इस अंदाज में बात कर जाते हैं कि बच्चे थोड़ा सा माइंड भी कर जाते हैं कुछ ऐसे अंदाज में। अब हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता, हम तो अच्छे अल्फाज ही कर रहे होते हैं कि ठीक है मुझे मिलिएगा क्लास के बाद, लेकिन एक बच्चा आया, उसने कहा जी सर मुझे तो अच्छा नहीं लगा, आपने कहा था कि जी मिलिए क्लास के बाद, तो मैंने कहा बेटा ये तो रूटीन में हम कह रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अंदाज के अंदर थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे आप नाराज़ हैं मुझसे, तो मुझे बताएंगे क्या हुआ। तो समटाइम्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो है टोन ऑफ वॉइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बात का सिचुएशन को प्रॉब्लमेटिक बना देती है। सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी क्रूशल, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ये इस हवाले से बहुत ही आम जो है होती है। और इस वजह से हमें जब भी लेक्चर्स देने के लिए जाना पड़ता है, तो उससे पहले हमें ये, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोफेसर्स हैं, कम्युनिकेशन ही हमारी स्ट्रेंथ है, तो ये तो मैं कहूँगा कि आप हमारी कम्युनिकेशन इतनी मतलब बुरी है, लेकिन बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑल द टाइम हम लर्न करते रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हमें एक रूम मिलता रहता है लर्निंग का और बेहतरी का। तो इस वाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पर्सनैलिटी जो है डेवलपमेंट, उसके सिग्निफिकेंस जो है वो कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी, इंटरेक्शन एंड लीडिंग एंड मोटिवेटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस वाले से। तो इस पे ऊपर हमारा फोकस था। अभी हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये डिस्टोर्शन हो रही है, प्लीज़ ज़रा इसको रोकिएगा, डिस्टोर्शन को, माइक बंद करके, थैंक यू। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट कौन है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बनाने में, तशकील देने में जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो देखिए, हम पर्सनैलिटी के अंदर जब बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर।
बायोलॉजिकल फैक्टर जिसमें आपकी हेरिडिटी, आपका ब्रेन, आपके फिजिकल फीचर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि आपका कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीनियस होते हैं। अच्छा, अब जीनियस होना जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जीनियस होना ये हमारा लर्निंग की वजह से था या फिर ये हमारा हेरिडिटी की वजह से था, यानी हमारे जीन्स के अंदर ये चीज़ चल रही थी। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो हम जो है अपने पेरेंट्स से वो ले रहे होते हैं। इसी तरह से जो फिज़िकल फीचर्स हैं, फिज़िकल फीचर्स लाइक आपकी हाइट, आपका जो स्किन का कलर है, आपका वेट क्या है, आपका आइज़ का कलर क्या है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो आ रही हैं, ये आपके वो फीचर्स हैं कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हैं। इनका ताल्लुक हमारी लर्निंग से नहीं है, और इसी वजह से बात का डिबेट चल रही होती है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। ये कहा जाता है कि इंसान जो है इसकी जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो उसकी पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स हैं, जो वो अपनी पैदाइश के साथ अपनी ट्रेड्स लेकर आया है, जैसे उसका टेम्परामेंट है तो ये उसकी पैदाइश के साथ ही लेकर आता है, जैसे उसकी डिस्पोजिशन है, कुछ टेंडेंसीज हैं बाय बर्थ उसके साथ हो रही होती हैं। तो ये कहा जाता है कि जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके जीन्स जो है वो कैसे थे, आप जो इनहेरिट की हुई अपने ट्रेड्स वो कैसी हैं, उसी की बेस के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी बन रही होती है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दिस इज नॉट एवरीथिंग। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ही वाहद फैक्टर है कि जिससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बनती है। नंबर एक। नंबर दो, जब हम कहते हैं नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, तो नेचर का मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके क्रोमोसोम्स, आपके जीन्स की वजह से है। और जब हम बात करते हैं नेचर नर्चर की तरफ, तो नर्चर वाले ये उनका ये मानना है कि पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप की जा सकती है, और डेवलप होने में कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर कहा जाता है वो फैमिली का है और सोशल फैक्टर्स हैं। फैमिली और सोशल फैक्टर्स, यानी जिस फैमिली के अंदर बच्चा पैदा होता है उस फैमिली ने बच्चे को जो है वो सिखाना होता है अपना कल्चर, अपने रिचुअल्स, उस बच्चे को बताना होता है फैमिली ने कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। ये फैमिली है जो सिखा रही होती है, या जो सोसाइटी है वो आपको ये सारी चीज़ें सिखा रही होती है। क्योंकि सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो फैक्टर्स हैं, लाइक छोटा सा बच्चा है जो न्यू बॉर्न है, उसका जो फर्स्ट जो एक उसका एक कनेक्शन होता है उसकी मदर के साथ होता है, तो एक ख़ास किस्म की जो उसकी बॉन्डिंग होती है, उसका इफ़ेक्ट जो है यानी बच्चे के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है उसकी मदर का, फिर उसके फादर का, फिर उसके सिबलिंग्स का, फिर उसके जो है रिलेटिव्स का। तो ये ग्रेजुअली इफ़ेक्ट उस पर आना शुरू हो जाते हैं। कैसे? जब बच्चा स्माइल कर रहा होता है, जब बच्चा बात कर रहा होता है, जब बच्चा वॉक कर रहा होता है, तो उसके सामने जो है मदर यानी पेरेंट, फादर या जो मदर जो है वो रोल मॉडल होते हैं। उसके जो है सिबलिंग्स हैं उनके सामने वो रोल मॉडल हो सकते हैं, उनको वो वॉच कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो इसलिए क्योंकि हमने कहा कि पर्सनैलिटी से मुराद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हैं? एक तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हम इनहेरिट कर रहे होते हैं। सेकंड, जैसे हमने कहा, आपकी फीलिंग्स, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है। जो थिंकिंग पैटर्न हम कहाँ से ले रहे हैं? थिंकिंग पैटर्न के तौर पर हम लर्न कर रहे हैं। कौन टीच कर रहा है? वो हमें हमारी फैमिली हमें टीच कर रही है। हम जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स, हमारा पीयर ग्रुप जो है वो कर रहा होता है। तो आपको पता है वो कौन से एजेंट्स हैं जो बच्चे के ऊपर यानी उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं कि किस कल्चर में पैदा हो गए, क्योंकि कल्चर जो है वो आपको वो एनवायरनमेंट दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर एक सर्टन किस्म की वो आपके बिहेवियर की जो है उसकी शेपिंग कर रहा होता है कि ख़ास कल्चर के अंदर ख़ास तरह के लोग। मसलन हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक कलेक्टिविस्ट हमारी एक अप्रोच है कि इकट्ठे रहें, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, जो कि अब वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं ये जॉइंट फैमिली का कल्चर अभी भी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर फ़ॉरेन में चले जाएँ तो उन्होंने ऐसा कल्चर जो है वो दिया है कि जिसके अंदर इंडिपेंडेंस हो, वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक
इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है कि जहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए ऊपर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे फैमिली के अंदर जो है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि हमारे कल्चर के अंदर डिपेंडेंसी का एलिमेंट जो है ज़्यादा पाया जाता है, जबकि दूसरे कल्चर्स के अंदर ऐसा है कि वहाँ पे डिपेंडेंसी कम है, वहाँ पे यानी इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है। तो ये हमारी जो ट्रेड्स डेवलप होती हैं कि कुछ इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं बच्चे और कुछ जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो जब हम क्लास के अंदर हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो बच्चों की पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। क्या उसके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से है, फैमिली फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, कि या फिर सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। अब जो था मैंने यहाँ पे सिचुएशनल फैक्टर्स का, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि जिसके अंदर हम लोग रूटीन में बहुत अच्छे होते हैं, यानी गुड पर्सनैलिटी शो कर रहे होते हैं, हमारा बिहेवियर जो है बड़ा पॉजिटिव होता है, लेकिन सर्टन सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पे आकर हमारी वो जो गुड पर्सनैलिटी की जो बात है, जो गुड पर्सनैलिटी की सारी ट्रेड्स हैं, वो कहीं पीछे रह जाती हैं, कहीं दूर चली जाती हैं। जब हमें कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने वो जो सेट रूल्स हैं, जो चीज़ें हमने सीखी होती हैं लाइफ के अंदर, गुड बिहेवियर जो हम बात कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा कहीं गायब हो जाता है और ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो हमारी ट्रू रिफ्लेक्शन है पर्सनैलिटी की, वो सर्टन सिचुएशंस भी क्लियर हो जाती है। सिचुएशनल फैक्टर जिनको हम कहते हैं कि सर्टन सिचुएशन के अंदर, लाइक हम जब बच्चों को तैयारी करवा रहे होते हैं यानी डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, जिसके अंदर बाज़ का ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं जी, जैसे BS के हमारे पास बच्चे आ रहते हैं, वो कहते हैं हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई करना है, मुख्तलिफ कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे अप्लाई करने हैं, तो सर हमें गाइड करें कि क्या करना चाहिए। तो उसके अंदर एक जो फैक्टर है, एक सिचुएशन दी जाती है उन बच्चों को उनके इंटरव्यूज़ के दौरान। तो उस सिचुएशन के अंदर वो कैसा परफॉर्म करते हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी जो है उसकी पूरी के पूरी उसको वॉच कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसका डोसियर तैयार कर रहा होता है। तो उसके अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन ऐसे बच्चे होते हैं, तो वो सर्टन सिचुएशन डिफाइन कर रही होती हैं कि उस फर्द की जो ट्रू रिफ्लेक्शन है पर्सनैलिटी की वो क्या है, जिसके अंदर डिफरेंट टास्क दिए जाए, उसके अंदर सर्टन कंडीशन जो है वो सिचुएशन जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर जो है ये भी आपका वाज़ेह हो जाता है सर्टन सिचुएशंस के अंदर। तो इसी तरह से जब हम ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं पर्सनैलिटी के, तो ये डिटर्मिनेंट्स का क्यों मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी क्या फ़ादियत है, क्या रेलिवेंस है। वो रेलिवेंस इसकी सिंपल सी है कि हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं जो हमारी जो शख्सियत को वो तश्कील दे रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे यानी स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे समथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज पर्सनल डेवलपमेंट मीन। आज हम वो देखेंगे, उस एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, जो हमने डेवलप करनी है। मैंने थोड़ी देर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, पर्सनैलिटी इज़ द नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स एंड बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, तो उस कॉम्बिनेशन की मैंने बात की। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ट्रेट्स हैं जिसको हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और किन स्टेजेस से गुजर कर हम कर सकते हैं। यहाँ पे है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। यानी आपने अपनी लाइफ को जो है खुद से क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें अपने अंदर पैदा करेंगे कि जिससे हमारी लाइफ जो है वो खूबसूरत हो जाए। तो वो हम देखेंगे। नंबर 1 क्या है हमारे सामने इस वक्त, उसमें पहला पॉइंट है होप, बिल्ड होप एंड ऑप्टिमिज्म। जी ज़रा माइक ओपन करेंगे यहाँ पे। अगेन अली, मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि होप और ऑप्टिमिज्म से आप क्या मुराद हैं? जी थैंक यू अली जी। प्लीज़ बताएंगे आप कि जब बात करते हैं होप और ऑप्टिमिज्म तो ये बुनियादी तौर पर क्या कॉन्सेप्ट है आपके जहन में? सर मैं ऐड करना चाहूंगी एक एग्जांपल, जैसे अक्सर दी जाती है कि एक ग्लास है वो हाफ फिल्ड है और आप उसकी कौन सा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि दैट इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो ऑप्टिमिज्म इज कि आप देख रहे हैं कि उसमें पानी है और हाफ है, और नेगेटिविटी या पेसिमिज्म अगर हम उसमें, तब हम कहेंगे कि ये तो हाफ खाली है। तो हमारी अप्रोच क्या है, हम अंदर से कैसे चीजों को देखते हैं, हम कैसे उनको परसीव करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज द पॉइंट। वेरी गुड वेरी गुड। कोई और बात करना चाहे जी इस पॉइंट पे? सर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लेना चाहूंगी। जी जी।
So मेरा नाम हिना इरशाद है. By optimism, I think that we should be able to accept the challenges first, because normally people are not able to accept the failures in life. They are always looking forward towards the wins, towards the victories. तो पहली चीज तो ये कि ऑप्टिमिज्म कि हमें फेलियर के लिए तैयार होना चाहिए, अपने माइंड को मेकअप करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए चैलेंजेस को. और सेकेंडली ये कि चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, हाउ वी कैन ग्रो फर्दर, what is the new thing that we can learn from the challenges. So that is optimism in my. Thank you very much. Thank you, madam. Very good insight. Yes, sir. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. Sir, in my point of view, hope is a positive emotional state of mind, and optimistic is our positive outlook, our attitude, our behavior. ओके अच्छा, मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका थैंक यू वेरी मच, आपने आइडिया दिया और आपका आइडिया जो है वो बड़ा क्लोज है, रेलिवेंट है. इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी नज़र के अंदर. वो ये है कि आप ये देखें, सबसे पहले हमें अपने अंदर होप और ऑप्टिमिज्म जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है. क्यों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें होप और ऑप्टिमिज्म हमें होना चाहिए. आप जब आजकल ख़ासकर जब बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं, जब हम अपने बच्चों को किसी कॉलेज के अंदर, जैसे हमारे मतलब बहन भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, भांजे भतीजे हैं, इसी तरह आपके भी होंगे यकीनी तौर पर. तो जब हम बच्चों को किसी कॉलेज में भेज रहे हैं एडमिशन के लिए, तो हम क्या कहते हैं, किस कॉलेज में आप जा रहे हैं, क्या डिग्री ली है और क्या करना चाहते हैं, कल को आप ये जो डिग्री लेकर जो है इसका क्या फ़ायदा है. आप आर्ट्स में आपने एडमिशन ले लिया और किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, ये कॉलेज आपके लिए बेहतर है, ये कॉलेज आप समझते हैं इस म्यार का है. यानी हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बच्चे के जहन में जो है वो डालते हैं. हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर के अंदर एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और मेरा ख्याल आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व की होगी, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, क्या हम अपने अदारों में आने वाले बच्चों को होप देते हैं, ऑप्टिमिज्म देते हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जब बच्चा को एडमिशन ले रहा होता है क्या हम उसको ये उम्मीद देते हैं कि बेटा ये जिस फील्ड में आप जा रहे हो इस फील्ड का कल को स्कोप क्या होगा, या हम उनको ये कह रहे होते हैं कि जी इसमें आकर तुम क्या करोगे और कौन से कॉलेज में दाखिला ले रहे हो. आज कल अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो एकदम से उसने बूम पकड़ा, उसके पीछे क्या रीज़न थी. क्या कभी हमें महसूस हुआ, क्या कभी हमें लगा कि कहीं की स्टेज के ऊपर आकर हम बच्चों को वो होप नहीं दे सके, वो ऑप्टिमिज्म नहीं दे सके कि जो हमें देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो जो प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर के अंदर आना चाह रहे हैं या हमारे पास आते हैं तो उनको हम बताएं, उनको होप दें. यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे पीएचडी डॉक्टर्स कितने हैं, यहाँ पे एमफिल कितने हैं, यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, रिसर्चर्स कितने बैठे हुए हैं, फॉरेन क्वालिफाइड कितने बैठे हुए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको कौन कौन से रिसोर्सेज दिए हुए हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बड़ी लैब्स हैं, कितने लोग आपको यहाँ पे सर्व करने के लिए हैं, कितने बड़े बड़े कैंपसेस यहाँ पे दिए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कैंपसेस. क्या हमने उनको ये होप दी, क्या हमने उनको बताया कि जब आप हमारे पास यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से डिग्री लेकर आप बाहर जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं. क्योंकि मेरी नज़र में सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है. जी जी सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, आपको इन्फॉर्म करना था कि 20 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने. ओके 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 डियर, थैंक यू. तो मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ जल्दी. तो ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब हम अपने बच्चों को किसी कॉलेज के अंदर दाखिल करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन सा है. तो क्या इसी तरह से जो बहुत पैसे वाले हैं या जो एक अपर एक यानी एक लेयर है जो अफोर्ड अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो प्राइवेट पब्लिक यानी कॉलेजेस में जाते हैं बच्चों को लेकर या पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं. और क्या ऐसी वजह है कि जो है वो प्राइवेट को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, पब्लिक को नहीं दे रहे होते. ये चीज़ डिबेटेबल हो सकती है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो पिक्चर नज़र आती है हमें लग रहा होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों की जो है एनरोलमेंट भी होनी चाहिए, ज़्यादा
लोग आने चाहिए। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे एक चीज़ है, वो है होप एंड ऑप्टिमिज्म। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन भी करता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ होप और ऑप्टिमिज्म में फ़र्क क्या होता है। होप बुनियादी तौर पर होता है कि आप एक चीज़ को प्लान करते हैं, आपका एक ख़ास मंसूबा होता है, आप एक गोल सेट करते हैं, उस गोल सेट करने के बाद आप उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि लाइक आप रात सोए तो आपने सुबह कॉलेज जाना है, आपने लेक्चर डिलीवर करना है, तो आपने एक टारगेट सेट कर लिया, आपने एक गोल सेट कर लिया। तो ये जो गोल आपने सेट किया है, ये क्या है? ये आपकी होप है, यानी आप सोते हुए ये उम्मीद करते हैं कि सुबह हमने जाग जाना है और हमने फ़लाँ वक्त कॉलेज में पहुंच जाना है। तो होप जहाँ पे होगी तो इसका मतलब वहाँ पे गोल सेटिंग होगी। जब हम ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिमिज्म से मुराद है ओवरऑल एज अ होल आपकी पॉजिटिव आउटलुक, यानी जो पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स द लाइफ जो है वो जो आपके कहलाती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म। यानी इसमें हमारा जो है एक ब्रॉडर व्यू है, यानी ऑप्टिमिज्म से मुराद है एक ब्रॉडर हम व्यू ले रहे होते हैं, एक पॉजिटिव जो है एक आउटलुक रखते हैं टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है, एज अ होल। तो ये दोनों में फ़र्क है कि हम हर चीज़ को पॉजिटिव में देख रहे हैं। हमें पता होता है चैलेंजेस होते हैं, बट लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि यस द एंड विल बी ओके एंड रिजल्ट्स विल बी ओके। तो होप और यानी इसके अंदर ऑप्टिमिज्म में ये फ़र्क है, और यही वो चीज़ है जो हमें अपने बच्चों को देनी है। लेकिन कैसे देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने अंदर होप और ऑप्टिमिज्म पैदा करनी होगी, उसके बाद ही दे सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रेन ड्रेन की एक बड़ी वजह ये है कि उसके अंदर हम होप नहीं दे सकते, उसके अंदर हम ऑप्टिमिज्म नहीं दे सकते ऐसे बच्चों को। तो जब हम नहीं दे पाते तो उस सूरत में क्या होता है कि ये बच्चे यहाँ से छोड़कर बाहर हमारा बेस्ट जो ब्रेन होता है चला जाता है। और इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है होप लेकर आना, वो है ऑप्टिमिज्म लेकर आना। तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं होप को डेवलप करने के, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो वो स्टेप्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इसी तरह से है कि लाइफ के अंदर जो ना बैलेंस, कि आपने फाइंड बैलेंस, यानी अपनी लाइफ के अंदर आपने क्या करना है? बैलेंस को फाइंड करना है। अब बैलेंस जो है वो बुनियादी तौर पर वर्क और लाइफ का है। एक इशू यहाँ पे ये आ रहा होता है कि हमें बाज़ ये समझ नहीं आ रही होती कि हमारे बच्चे जो आजकल घरों में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। वो 2 घंटे के बजाय 10 घंटे 12 घंटे, बाज़ लोग जो हैं इतने बच्चे वो एडिक्टिव हो चुके हैं, वो बैलेंस नहीं कर पाते कि उन्होंने अपने स्टडी टाइम क्या है, एकेडमी टाइम क्या है, स्कूल या कॉलेज का टाइम क्या है। इसी तरह से हमारा भी यहाँ पे पास का प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं कर पाते। मसलन हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने के बाद घर जाते हैं तो हम घर जाकर कॉलेज की बात करना शुरू कर देते हैं कि आज जो है बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, आज कॉलेज में बहुत सारे काम थे। क्या किया हमने अपने अदारे का सारा जो है काम वो घर जाकर बताया कि जी आज बिल्कुल मैं टायर्ड हूँ। और जैसे ही अगले दिन कॉलेज आए तो हम जिक्र करना शुरू कर देते हैं कि जी कल घर में बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। यानी हम बाज़ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम रूटीन में ये नहीं देख पाते कि हमारा रिलैक्सेशन का टाइम क्या है, यानी मी टाइम हमारा क्या है, हम प्रॉपर ईटिंग हमारा ईटिंग बिहेवियर क्या है, हमारा स्लीपिंग बिहेवियर क्या है, क्या हमारे पैटर्न्स ठीक चल रहे हैं, सही वक्त पे खाते हैं, सही चीज़ खा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए हमें टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो आपका बैलेंस बनाती हैं। तो अगर ये बैलेंस हमारी ज़ाती लाइफ के अंदर नहीं होगा तो वो बच्चे जो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं कॉलेज के अंदर और परेशान हैं कि भाई जिनको यानी अपनी एजुकेशन में और सोशल मीडिया के अंदर वो बैलेंस नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बैलेंस अपने अंदर पैदा करना ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। क्रिएट एंड लर्न। आप देखें कि आपकी ज़िंदगी जो है, यानी आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कल आप एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएंगे, तो क्या आपने अपनी लाइफ खुद क्रिएट नहीं की या किसी ने क्रिएट की है? आपने खुद अपनी लाइफ क्रिएट की है। हम अपने अंदर तो ये यानी हमें किसी ने कोई चीज़ बना कर नहीं दी, हम कितने कठिन हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं वो हम ही जानते हैं। हमें पता है हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितना हमने पढ़ा, कितनी मेहनत की, किन किन मराहल से हम गुजर कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये जो मैसेज है ये हमें अपने बच्चों को भी देना है, उन बच्चों को देना है जो हमारे पास आ जाते हैं और कहते हैं सर काइंडली आप मेरी हेल्प कीजिएगा, इस असाइनमेंट के अंदर नंबर लगवा दीजिएगा, फलां प्रैक्टिकल हो रहे हैं वहाँ पर मेरी मदद कर दीजिएगा। हमें उनको बताना है कि बेटा लाइफ को क्रिएट करना है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। आप लर्न करें, आप इन मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज से खुद सामना करें और इससे लर्न करें, आगे बढ़ें। तो ये क्रिएटिविटी और लर्निंग जब तक हम में खुद नहीं होगी हम आगे कैसे इम्पार्ट कर सकें?
तो क्योंकि हम ऑलरेडी स्टेज के ऊपर कैसे पहुंचे हैं, हम क्रिएट करके पहुंचे हैं, लर्न करके पहुंचे हैं। तो यही जो क्रिएटिविटी है और जो लर्निंग है, ये बच्चों में हमें इम्पार्ट करने की ज़रूरत है। हमें ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल देना पड़ेगा जहाँ पे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, उनको क्वेश्चन करने की इजाज़त देनी पड़ेगी हमें, उनको फ्री प्लेटफॉर्म्स हमें देने पड़ेंगे जहाँ पे ओपन डिस्कशंस रखी जा सकें। ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए हमें जहाँ पे उनके पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत यानी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर होंगी, यानी हमारे अंदर होंगी तो हम आगे इम्पार्ट कर पाएंगे। ऑब्वियसली होंगी भी, हम ऑलरेडी, क्योंकि प्रोफेसर्स एंड टीचर्स और हमारा काम ही है ये क्रिएटिविटी, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी। इसी तरह से कंसेप्ट है गिविंग जो है, इसकी शानदार मिसाल जो है अब्दुल सर ईदी साहब के हमारे सामने भी मिसाल है कि वो कहते हैं कि जब वो घर से जाते थे, उनकी जो वालदा साहबा थी उनको 2 आने दिया करती थी। एक आना उनके अपने इस्तेमाल के लिए और एक आना वो रास्ते में किसी भी फ़र्द को देते थे। तो अब देखें वो 2 आने से बाद चलने वाली जो थी उसका सफ़र कैसा था कि वो आस्ता 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 वो एक जो है हमारे लिए आइकॉन बन गए हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल बन गए हैं। और उस गिविंग की वजह से कितनी ब्लेसिंग्स, कितना नाम कमाया उन्होंने। इसी तरह से जब हम बात करते हैं गिविंग की, तो हमारे अंदर गिविंग की स्पिरिट होनी चाहिए। अब गिविंग से मुराद क्या है? क्या हमें किसी बच्चों को कोई हज़ारों रुपया बांटना है, कोई मिलियनर यानी हमने बनाना है उनको कि हमारे पास इतने पैसे और हम बच्चों को ट्रांसफ़र कर दें? नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। वन ऑफ द मोस्ट इनवैल्यूएबल थिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ, दैट इज़ टाइम। हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चों को अपना टाइम दे सकते हैं। क्लास के अलावा भी हम उनको टाइम दे सकते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम उनके अंदर वॉलंटियरिंग की जो स्पिरिट है वो पैदा कर सकते हैं, वो वॉलंटियर काम करें, वो आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर के अंदर। दूसरों की जगह पे अपने आप को रखने का, यानी जो हमने शुरू में बात की ना एम्पैथी की, एम्पैथी इससे पैदा हो सकती है। ऐसे लोग जो होते हैं जो वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी इजाफा हो जाता है और उनके अंदर जो है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी पैदा होती है। और जो क्रोनिक किस्म की इलनेसेस होती हैं उससे भी बच जाते हैं, डिप्रेशन से भी बच जाते हैं, अच्छी नींद आ रही होती है। इन ऐसे लोगों को जो हार्ट अटैक होते हैं उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अगर आप वॉलंटियर नहीं भी कर सकते तो क्या कर सकते हैं? आप रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं। किसी चलते हुए को आप रास्ते में कोई खाना दे दें, भूखा देखा उसको खाना दे दें, किसी के सर के ऊपर हाथ रख दें, किसी। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो ट्रेड्स हैं कि जो आप बच्चों में जो है इनकलकेट कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब हम में स्पिरिट होगी गिविंग की, हम अपना वक्त देंगे, टाइम देंगे। क्योंकि जब बच्चों के अंदर हम क्लास के अंदर उनके अंदर स्पिरिट पैदा करेंगे, छोटे छोटे ऐसा माहौल बना देंगे कि जिसके अंदर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हम रखेंगे, वॉलंटियरिंग का कॉन्सेप्ट रखेंगे। ऐसे बच्चों को यानी तैयार करें कि वो बाहर निकलें, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अर्न करें, सोसाइटी के अंदर रिसर्चेस करें और फंड रेजिंग करें। फंड रेजिंग करने के बाद वो जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके पास जाएं, उनको जाकर जो है वो सपोर्ट दें, उनको जाकर वो हेल्प दें। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं बी ग्रेटफुल, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब ब्लेसिंग जो हैं, देखें एक बहुत ही मज़े की मिसाल है। आप सबके साथ बचपन में जब आप स्कूल जाया करते होंगे उस वक़्त आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे भी आपके साथ होंगे जो बहुत कॉम्पिटेंट होंगे। जैसे मेरी ज़िंदगी में भी थे कुछ ऐसे लोग थे। हमारे स्कूल के अंदर एक बच्चा था जो बहुत कॉम्पिटेंट था, बहुत लाइक था, वो थ्रू आउट टॉप कर रहा था, स्कॉलरशिप भी थी उसकी। लेकिन आज देखें, आज मैं यहाँ पे एक प्रोफेसर की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, तमाम तरह की प्रिविलेज मेरे पास हैं, एक सोसाइटी के अंदर नाम है, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जो है वो एक जॉब के ऊपर हम बैठे हुए हैं, एक अच्छे प्रोफेशन, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग जो मेरे साथ सफ़र जिन्होंने शुरू किया था, अब वो किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, कोई इस वक्त कोई बस ड्राइवर बन गया है, कोई रिक्शा चला रहा है, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उस वक्त शायद मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, दे वर टॉपर्स, उनके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा था। लेकिन कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ऐसे लोग जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे और हम अपने आप को समझते थे कि हम एवरेज थे, आज वो कहाँ पे और हम जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। उसकी ज़ात की तरफ से जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उनका अगर हम शुमार करना शुरू कर दें तो शुमार नहीं कर सकते। इसी तरह से अब जब हम कॉलेज के गेट से कभी एंटर हों तो कॉलेज के गेट पे खड़े हुए
एक गेट कीपर को जब वो आप देखते हैं कि वो आपको सलाम करता है, तो हम भी क्यों ना बदले में उसका शुक्रिया अदा करें, क्यों ना उसका ग्रेटफुल हों, क्यों ना उसको बताएं कि भाई तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने जो है वो मुझे सुबह सुबह ही आकर सलाम किया, मुझ पर सलामती भेजी। इसी तरह से अगर हम क्लास में आते हैं तो बच्चे आपके लिए खड़े हो जाते हैं, बच्चे आपके लिए उठकर पानी लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा क्यों नहीं कर सकते। हमने यही मैसेज बच्चों को देना है कि बेटा अब आप जब शदीद बारिश के अंदर भी आप क्लास में आए हैं तो आपका शुक्रिया कि आप लोग जो हैं वो बहुत कमिटेड हैं, कि आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, और आप इतने सख्त वेदर के बावजूद जो है आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसलिए जो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड ये आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। यानी आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, क्योंकि वो हम काउंट नहीं कर पाते, वो हमें जो है वो रूटीन में हम उनको ले रहे होते हैं। इसलिए चाहे कहता है ग्रेटिट्यूड इट्स नॉट हैप्पीनेस that brings us gratitude, it's gratitude that brings us happiness। मीन्स कि अगर आप ज़िंदगी में खुशी कराना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, इजहार तशक्कुर करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंक्रीज ह्यूमर। अच्छा, ह्यूमर जो है ज़िंदगी के अंदर, मज़ाह जो है वो एक जुमला, वो एक लफ्ज़ जो आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लेकर आ जाए, वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो ज़िंदगी के जो आप रमक हो रहे होते हैं उसको दोबारा बहाल करने में बहुत अहम होता है। अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो क्या होगा कि हालात जितने मर्जी कठिन हो, आप जो हैं वो ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी आपने देखा बाज़ का ऐसे होते हैं, कोई बीमार पड़ा होता है तो कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, कोई दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि वो जब मिलने जाते हैं तो वो कोई ना कोई जोक, कोई मजाक, कोई हंसी, कुछ इस तरह का है। हमें बाज़ का अपने रूल से बाहर निकल कर बात करनी पड़ती है, हमें सख्तियों से बाहर निकल कर अपने आप को लाइटर मोड में बात करनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटा सा मज़ाक जो है किसी की ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, उसके चेहरे पर रौनक लेकर आ सकता है। यही हम कहते हैं कि थ्रू ह्यूमर यू कैन सॉफ्टन सम ऑफ द वर्स्ट ब्लोज दैट लाइफ डिलीवर्स, एंड वंस यू फाइंड लॉफ्टर, नो मैटर हाउ पेनफुल योर सिचुएशन माइट बी, यू कैन सर्वाइव इट। और एट द सेम टाइम जो आपका जो ह्यूमर है वो एक एंटीडोट के तौर पर काम कर रहा होता है। स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ह्यूमर। अब तो आपको पता है जो है वो थेरेपी है और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल भी किया जाती है। अपने आप पर भी हंसना शुरू कर दें, अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर हंसना शुरू कर दें, बच्चों के साथ खेला करें। ये जो चीज़ है एक ह्यूमर फैक्टर है, एलिमेंट है। यही एलिमेंट जब आप बच्चों के साथ जाकर क्लास में शेयर करेंगे, उनके अंदर ये चीज़ लेकर आएंगे, तो ऑब्वियसली वो बच्चे जो सैड होंगे, जो थोड़ा से डाउन फील कर रहे होंगे, उनके चेहरे पे स्माइल आएगी। और यही मैसेज वो बच्चे कल को घर लेकर जाएंगे कि मुश्किल हालात के अंदर भी जो है वो इससे मज़ाह जो है वो कायम रखनी चाहिए, वो ज़िंदगी के अंदर एक रोशनी की मानद होती है। अब हम बात करते हैं रेजिलियंस की। अब रेजिलियंट क्या है? बी रेजिलियंट, बर्न आउट एंड रेजिलियंस, दिए से दिया जलता है। होता ये है कि ज़िंदगी जो है बाज़ वक़्त इतने थपेड़े देती है कि हम थक जाते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम काम करने को चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बैठ जाएं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, इसके बावजूद हमारे में कुछ ना कुछ करने की हिम्मत जो बाकी रह जाती है, उसी का नाम रेजिलियंस है। जब हम बाउंस बैक करते हैं, जब सेटबैक्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो यही चीज़, यही स्पिरिट हमें क्या है बतानी पड़ेगी। किसको? बच्चों को, कि वो जो डाउन हो जाते हैं उनको बताना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। और बर्न आउट से हमें जो है वो बचना होगा, यानी रेजिलियंस कायम करनी होगी, बर्न आउट से बचना होगा। क्योंकि बर्न आउट होता है बेसिकली स्ट्रेस की वजह से आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आप अपना काम नहीं करना चाह रहे होते। और रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस ये है कि जब बहुत सारी मुश्किलात हों, चैलेंजेस हों, आप गिर रहे हों, गिर कर फिर उठ खड़े हों। यानी एक जगह पे फरमान है कि अगर आपने सब कुछ खोकर भी आपके पास कुछ थोड़ा सा बाकी करने की हिम्मत है, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं खोया। तो यही मैसेज जो है वो अपने बच्चों को देना है। तो ये बर्न आउट के वो फैक्टर्स हैं कि जिससे बर्न आउट होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेस को कोप करने की स्ट्रेटजीज नहीं होती, परफेक्शनिज्म में हो जाता है, डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, हमारे पास इनफ टाइम नहीं होता, हम अपनी चॉइसेस पे रिग्रेट कर रहे होते हैं, पुअर रिलेशनशिप हमारा होता है, लैक ऑफ टाइम होता है सेल्फ केयर के लिए, लैक ऑफ कंट्रोल होता है, बैड हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग
करते हैं, बाज़ लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो है ना वो बर्न आउट की तरफ लेकर जाती हैं। अच्छा, ज़िंदगी में देखा होगा आपने कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, अगर हम जाते हैं चेकअप करवाने के लिए अपनी हार्ट बीट, तो अगर अप्स एंड डाउन्स आएँ तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यस यू आर अलाइव। और अगर आपकी लाइफ जो है, लाइन की जो है, जो लाइन है लाइफ की, वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ नो मोर। तो ज़िंदगी की जो असल खूबसूरती है वो अप्स एंड डाउन्स के अंदर है। अगर ज़िंदगी में आपके अप्स एंड डाउन्स हैं, कहीं परेशान हैं और कभी खुश हैं आप, तो जहन में रखिएगा कि आप जिंदों में हैं। आपका शुमार जो है उन लोगों में हो रहा है तो जो ज़िंदगी को गुजार रहे हैं भरपूर तरीके से, क्योंकि ज़िंदगी है ही अप्स एंड डाउन्स का नाम। ये कॉन्सेप्ट जो है हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को बताना है। जो ज़िंदगी के अंदर कहीं पे डाउन हो तो हमें बताना पड़ेगा कि ज़िंदगी नाम ही अप्स एंड डाउन्स का है, और इस मैसेज को हम आगे लेकर जो है वो चलना होगा। मेक वन स्मॉल चेंज इन योर लाइफ। अब ज़िंदगी में बहुत बड़ा नहीं करना हमने कुछ, हमें छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा चेंज लेकर आना है लाइफ के अंदर। वो चेंज क्या है? वो कुछ भी हो सकता है। वो एक कांटे को एक गुज़रगाह से उठाने का काम भी हो सकता है। आप ये इमेजिन करें कि 24 करोड़ आवाम जो है वो अपने अपने रास्ते से एक एक कांटा उठाएं तो 24 करोड़ कांटे जो हैं वो उस रास्ते से दूर हट जाएंगे। और अगर आप गली मोहल्लों को साफ़ रखना शुरू कर दें तो एक एक फ़र्द जो है वो अगर करना शुरू कर दे, 24 करोड़ मिलकर क्या कर सकते हैं। तो ये जो स्मॉल चेंज है, एक छोटी सी स्माइल जो है वो ज़िंदगी को चेंज कर सकती है, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। तो ये मैसेज जो है स्मॉल चेंज का, ये पूरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। यही मैसेज हमने अपने बच्चों को देना है, अपने स्टूडेंट्स को देना है कि वी डोंट हैव टू मेक बिग चेंजेस इन आवर लाइफ, वी डोंट हैव टू डू समथिंग वेरी बिग, वी सिंपली हैव टू डू स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ। जस्ट घर जाएं, मदर को देखें, स्माइल पास करें, वालिद को देखें, जस्ट हग करें, सुबह उठें, अगर पॉसिबल हो सके, अगर आप मियाँ बीवी का है वहाँ पर रिलेशन, किसी को एक छोटा सा फूल जो है वो पेश कर दें, एक छोटा सा खूबसूरत लफ्ज़ जो है, एक जुमला जो है उनके बारे में कह दें, तो आप देखेंगे कि पूरी ज़िंदगी का जो है एक जो पिक्चर है वो चेंज होकर रह जाएगी, बदल जाएगी। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अभी जो मैंने आपके सामने ये 8 पॉइंट रखे हैं, होप की बात की, फाइंड बैलेंस की बात की, क्रिएटिविटी की बात की, गिविंग की बात की, ग्रेटफुल होने की, ह्यूमर की, रिजिलियंस की और बर्नआउट की और स्मॉल चेंज की बात की, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है, क्योंकि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और जब हमने ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ भी पैदा कर लेंगे तो यकीन माने यही वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगियों में तो चेंज लेकर आएगी, लेकिन आपके स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। मसलन हम छोटा सा काम डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ एक जुमला, एक ऐसा मोटिवेशनल जुमला जो है बच्चों को क्लास में बताना शुरू कर दें, कोई एक कोटेशन बताना शुरू कर दें डेली बेसिस के ऊपर, या रोज़ाना आकर बच्चों के साथ एक स्माइल पास करना शुरू कर दें, तो यकीन माने पूरी क्लास का माहौल जो है वो तब्दील हो सकता है, बदल सकता है। और यकीनन आप करते भी होंगे, आप बहुत सीनियर लोग हैं, आप बहुत शानदार लोग हैं, आप करते होंगे। अब कैसे हम हासिल कर सकते हैं ये सारी ट्रेड्स, हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो उसमें है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं पर्सनैलिटी को डेवलप करने की। यानी ये जितने भी मैंने फैक्टर्स अभी बात की, ट्रेड्स की बात की, वो कैसे हम डेवलप कर सकते थे? नंबर 1 हम कैसे कर सकते हैं? डेवलप ट्रस्ट। हम ट्रस्ट डेवलप करके जो है बच्चों के साथ ट्रस्ट डेवलप करके हम उनके अंदर ये ट्रेड्स पैदा कर सकते हैं। यानी आपका और आपके स्टूडेंट्स का एक ट्रस्ट होना चाहिए कि उनको एतमाद हो कि मैं टीचर के पास जा रहा हूँ और मेरा यहाँ पे जाकर प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। इन द सेम मैनर लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। आप खुद भी इंडिपेंडेंट काम करना। यानी हमें बाज़ होता है कि हम सोच रहे होते हैं फ़लाँ फ़र्द आएगा, फ़लाँ कोलीग आएगा तो उससे कहेंगे ये काम करे, बट समटाइम्स वी हैव टू टेक द लीड, समटाइम्स वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन, सो दैट्स वाई वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये जो है डिपेंडेंसी से बाहर निकलना हमें पड़ेगा। जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो ज़िंदगी हमारी जो है वो बहुत आसान होना शुरू हो जाएगी। टेक इनिशिएटिव, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, इनिशिएटिव्स हमें सिखाने पड़ेंगे बच्चों को, क्योंकि इनिशिएटिव लेना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन आज से अगर आप सुबह जब क्लास शुरू होती है तो इनिशिएटिव ले लें, छोटा सा स्मॉल चेंज, एक स्माइल से काम शुरू करें। सब बच्चों को कहें कि जी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सब बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। यहीं से स्टार्ट कर लें और डेली बेसिस पे करें, इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव जो है लाइफ के अंदर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक आपकी कामयाबी का जो है वो एक स्टेप है। जब हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए तो उसमें एक चीज़ होती है इनिशिएटिव। जब आप जाएँ डिस्कशन के लिए, उन्हें कहा जाता है कि इनिशिएटिव आपने लेना है, इसका इम्पैक्ट बड़ा
जो है पॉजिटिव होता है। इसी तरह डेवलप स्किल्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके ऊपर बात बहुत डिटेल में कर ली है कि स्किल्स कौन सी हैं, 2 तरह की हैं, हार्ड स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, हार्ड स्किल्स के हवाले से क्या है कि जिसके अंदर आप डिफरेंट गैजेट्स को यूज़ करना सीखेंगे, तो अपने जो स्किल्स हैं वो डेवलप करेंगे, आप खुद डेवलप करेंगे तो बच्चों को बताएंगे, तो अपनी जो डेवलपमेंट है स्किल्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सर्च फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट जॉब। आइडेंटिटी यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या गोल्स हैं, यानी कैसे आइडेंटिटी का पता चलेगा हमें, हमें अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जो है यहाँ से हमारा जो है वो आगाज़ होगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, उन गोल्स के मुताबिक हम अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या यानी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स हमने ज्वाइन किए हुए हैं। ये आइडेंटिटी जो है, सर्च फॉर आइडेंटिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव दिस इशू with them because they don't know about themselves। तो हमने उनके अंदर सेल्फ जो आइडेंटिटी है वो शनाख्त जो है पैदा करनी है, वो आप ही पैदा कर सकते हैं। कब पैदा करेंगे, जब हमें पता होगा कि आइडेंटिटी हमारी क्या है। एस्टेब्लिश इंटीमेसी, स्टूडेंट्स के साथ ऐसी इंटीमेसी रखें कि जिसके अंदर बच्चे आपके साथ आपका पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकते हो, उनको एतमाद हो कि ये चीज़ हमारे टीचर से आगे नहीं जा सकती, ये मेरे प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन है वो ये इसी टीचर से मिलेगा और ये मेरी बात भी यहाँ तक रहेगी। क्योंकि जब बच्चों को हम प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते, उनके साथ रैपर डेवलप नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो जो अनहेल्थी मीम्स हैं वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे मतलब डिफरेंट गूगल है या और इस तरह के डिफरेंट जो इंजन्स हैं उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो वी नीड टू एस्टैब्लिश इंटीमेसी विद आवर स्टूडेंट्स। सो क्रिएट एंड नर्चर, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि हमने क्या करना है, ऐसा माहौल पैदा करना है जहां हमने खुद क्रिएट करना है, हमने क्लास का एनवायरनमेंट डिफरेंट करना है, हमने अब स्माइल लेकर आनी है, अब हमने क्लास के अंदर वॉलंटियरिंग करनी है, हमने बच्चों को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ हम जनरेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो हम अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, यही माहौल हम बच्चों के लिए हमें पैदा करना पड़ेगा। लुक बैक विद एक्सेप्टेंस, थोड़ी देर पहले एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि हमें अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने माजी को। कहा जाता है कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट, तो लिहाजा हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जब हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा एक्सेप्ट करने का, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जब हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें पास्ट में होने वाली गलतियों का और खूबियों का दोनों का एहसास हो जाएगा। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम स्टेट ऑफ डाउट में रहेंगे। तो स्टेट ऑफ डाउट में रहने की बजाय हमें बेहतर है कि हम क्लैरिटी की तरफ जाएं। तो कैसे जाएंगे, एक्सेप्टेंस के ज़रिए। माजी को जो है वो कबूल कर लें और दिल से कबूल करें और वहाँ से सीखें। ज़िंदगी जो है वो फेलियर का नाम नहीं है, ज़िंदगी लेसन्स का नाम है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं या आप लेसन्स लर्न करते हैं, तीसरी चीज़ कुछ नहीं होती, वो हम अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे होते हैं। फेलियर, मैंने किसी बच्चे से पूछा कि लास्ट टाइम कब फेल हुए, तो उन्होंने कहा जी मैं तो फेल ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा इसका मतलब आपकी ज़िंदगी का जो जर्नी है, लाइफ जो है, उसके अंदर एफर्ट ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट ने पूछा वो कैसे, मैंने कहा फेलियर जहाँ पे हो रही होती है इसका मतलब वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही होती है, वहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि हम नया कुछ कर रहे होते हैं। जब नया करेंगे तो वहाँ पे फेलियर होगा, और अगर आप नहीं कुछ ट्राई करेंगे तो कैसे फेलियर होगा, पॉसिबल नहीं है। तो उसको फेलियर का नाम देने के बजाय हम लेसन का नाम देते हैं, और ज़िंदगी में जो एक्सेप्ट करें अपने माजी को, जो गलती हुई एक्सेप्ट कर लें, बट इस असूल के साथ कि ये गलती हमने रिपीट नहीं करनी। तो इट विल सर्टनली हेल्प यू अ लॉट। और जब ये सब कुछ आप कर चुके होंगे तो यू विल बिकम अ लीडर, यू विल हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस ऑल दिस थिंग्स। अब ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किन चीज़ों से आपने वे रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, बॉडी लैंग्वेज आपने पॉजिटिव रखनी है, जो पहले हम बात कर चुके हैं। आपके ड्रेस एटिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने देखा कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं, वो पूछ रहे होते हैं, आकर टीचर से पूछ रहे होते हैं कि जी हमने यहाँ से किसी प्रोफेसर से बात करनी, तो वो कहाँ मिलेंगे। वजह क्या होती है, समटाइम हम कैजुअल में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है, आखिर ड्रेस एटिकेट्स, ड्रेस जो कोड है वो बनाए क्यों गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उसका सिंपल सा यानी रीज़न ये है कि हम फ़र्क कर सकें, और उस्ताद का और एक आम बंदे के ड्रेस के अंदर एक फ़र्क होना चाहिए। मसलन आप एरोप्लेन में दाखिल होंगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एयर होस्टेस कौन है और आम पब्लिक कौन सी है। इसी तरह से जब आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे वेटर कौन है और यहाँ पे मैनेजर कौन है। इसी तरह से आप किसी भी दफ्तर में दाखिल होते हैं तो उनके ड्रेस कोड से अंदाज़ा हो जाता है। तो ड्रेस कोड क्यों बनाए गए, सिर्फ इसीलिए बनाए गए ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो एस्टैब्लिश हो सके अलग से। तो हमें इसके ऊपर बड़ा वर्क करना
होगा। हमें अच्छे ड्रेस कोड का मतलब कि हम खुद से एटिकेट्स अपनाएं और साथ साथ यही चीज़ अपने बच्चों में इनकलकेट करें। प्लान अप्रोप्रिएटली, अगर हम प्लान ज़िंदगी में नहीं करते तो हम कुछ नहीं करते। ऑल द वर्ड्स आर वन विद द प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। अगर आपकी लाइफ में प्लान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यही प्लान जो लेसन प्लानिंग की सूरत में सामने आ रहा होता है, या फिर फ्यूचर का प्लान कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 तरह के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल होता है, मिडिल टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। टाइम कम है, अदरवाइज बात करते हैं इसके ऊपर। आप मेरे मैसेज को समझ चुके होंगे, उम्मीद है कि आप सब सीनियर लोग हैं। बेटर पब्लिक स्पीकिंग जो है ये हमने प्रोड्यूस करनी है। गोल सेटिंग, गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल होने चाहिए। स्मार्ट गोल से क्या मुराद होती है? एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक गोल्स, एम फॉर मेजरेबल गोल्स, ए फॉर अचीवेबल गोल्स, और आर फॉर रेलिवेंट होने चाहिए गोल्स, और टी फॉर टाइम बाउंड। यानी स्मार्ट गोल्स सेट करें। ये एक स्ट्रेटजी है, साइंटिफिक वे है गोल्स को सेट करने का। लाइफ में अगर आप गोल सेटिंग कर रहे हैं तो यकीनन आप बच्चों को भी कह रहे होंगे कि लाइफ के अंदर गोल सेटिंग करें। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम कॉम्प्रिहेंसिवली भी बात कर चुके हैं। जब आप ये सब कुछ कर जाएं, ये सारी स्टेजेस क्रॉस कर जाते हैं, तो आप यकीन माने आप उस वक्त तक लीडर बन चुके होते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा हो चुकी होती हैं। नाउ यू आर रेडी दैट यू हैव बिकम अ लीडर एंड यू आर रेडी टू लीड द ऑडियंस। और लोग अब आपके पास खुद आना चाहेंगे, खुद आना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। एंड पे every successful person has a painful story, every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success. Thank you very much, शुक्रिया। और बस इसी उम्मीद के साथ कि पेन को एक्सेप्ट करें और सक्सेस के लिए तैयार हो जाएं। जी प्लीज़, थोड़ा सा टाइम हो गया ज़्यादा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में इशू आ रहा था। अली अगर कोई सवाल करना चाह रहा है तो मैं सवाल लेना चाहूँगा प्लीज़, अगर टाइम हमें 2-4 मिनट दे दें आप। जी सर, माइक अलाउ है। जी जी अलाउ है प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, फ़िलहाल कोई क्वेश्चन एज सच नहीं है। आपने बहुत डिटेल लेक्चर किया। यू आर अ मार्वलस स्पीकर। और आपका यानी कि पूरे लेक्चर की टोन थ्रू आउट द लेक्चर सेम रही। और आपने यानी कि वोकैबुलरी, स्पीकिंग फ्लुएंसी, और बेशक वो एक पर्सनालिटी का एक फैक्टर कि आप सामने नज़र नहीं भी आ रहे थे, लेकिन आपने अपनी स्पीकिंग फ्लुएंसी से, आपने अपनी वोकैबुलरी से इस चीज़ को इतना कवर किया। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, मार्वलस स्पीकर, अप्रिशिएटेड, सैल्यूट यू सर। जज़ाकल्लाह। अली ज़रा